أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قد قتنا قبل يوم الحساب. عندهم خزائن کیا؟ عندهم ان کے پاس ہے خزائن خزانے رحمت رب کا، تیرے رب کی رحمت کے، العزیز الوہاب جو بہت غالب اور وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس ہے، لہم ان کے لیے ہیں، ملک السماوات والارض بادشاہی آسمان اور زمین کی، وما بینہم اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، یا تک وہ چڑھ جائیں فی الاسباب سیڑھیوں پر، یا وہ کوئی اسباب اختیار کریں۔ جند ما ہنالک، یہ ایک قلیل سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے، ما ہنالک جو نہیں ہے مگر، ہنالک یہاں پر ہی، معزوم شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب یعنی اور بہت سے لشکروں میں سے شکست کھایا ہوا یہ بھی ایک لشکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح کو جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے، ذو الاوتاد جو میخوں والا تھا، میخوں والے فرعون نے، سب نے جھٹلایا۔ وہ سمود و قوم لوط اور سمود کی قوم نے، اور سمود نے اور قوم لوط اور لوط کی قوم نے، وہ صحاب الایکا اور ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب یہ سب یہی وہ لشکر ہیں، احزاب ہیں لشکر ہیں۔ ان کلن نہیں ہے وہ سب، الا مگر، کذب الرسل انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب پس ثابت ہو گیا ان پر عقاب میرا، انتقام یا میرا عذاب۔ وما ینظروا اور نہیں وہ انتظار کر رہے، ہؤلائی یہ لوگ، الا مگر صیحتا ایک چیخ کا، واحدہ ایک چیخ کا، وما لہا من فواق جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا اور وہ انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، عجل لنا جلدی عطا کر دے، جلد کر دے ہمیں قطنا ہمارا حصہ، قبل اس سے پہلے کہ یوم الحساب یعنی یوم حساب سے پہلے ہی ہمارے جو اگر عذاب ہے تو اس کا حصہ ہمیں پہلے ہی دے دے، یعنی جلدی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کل بات پڑھی اس کا یہ جواب ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم میں سے یہی یہ شخص ہے جو یہ ملا ہے جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اسی پہ وہی نازل ہوتی ہے؟ ان کا یہ تھا نا بڑے بڑے لوگوں پہ اوروں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہے، کیا تیرا رب عزیز اور وہاب جو بہت زیادہ غالب بھی اور بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، کیا اس کی رحمت کے خزانہ ان لوگوں کے پاس ہے؟ کیا ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس کے جنم چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، یعنی جسے چاہے وہ نبوت عطا کر دیں اور جس سے ان کی مرضی چلے گی؟ ایسا تو ہرگز ہے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانوں کا خود اکیلا مالک ہے۔ اپنی رسالت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کی مرضی ہے، جسے وہ بہتر سمجھتا ہے اسی کو اپنی رسالت کے چن لیتا ہے، کسی کا کوئی اختیار ہے نہیں۔ جب اگر ایسی بات ہے اور اگر اس نے اپنی نعمت رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تو یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟
इसमें जब उनका कोई हिस्सा ही नहीं है, उनमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो सिवाय हसद के वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तो है उन्हीं के, अल्लाह तबारक व तआला ही के पास है। और अब अगर ये समझते हैं कि सारी, कि उनके पास भी कोई है बादशाही ज़मीन और आसमान की, या जो उनके दरमियान जो कुछ है, अगर उनके पास ये समझते हैं उनके पास भी है, तो फिर वो चढ़ जाए सीढ़ियों पर सीढ़ियाँ लगा लें, और असबाब यानी आसमान की सल्तनत के मालिक अगर वो चाहे तो उस पर चले जाएं। और फिर जो अगर उनकी मर्जी, फिर वो जो चाहे कर लें, यानी जिसको चाहे नबूवत दे दे, जिसको चाहे रहमत दे, जिसको चाहे रोक लें। अगर उनके बस में ऐसा अख्तियार है, तो फिर वो कोई ऐसे असबाब अख्तियार करें कि फिर वो अल्लाह की जो कुदरत है उसके वो मालिक बन जाए, और फिर जो चाहे करें, जिसको चाहे वो असबाब दें। मगर ऐसा है नहीं, सबको पता है कि तो मुमकिन नहीं है। तो फिर ये बेहुदा बातें करने का फ़ायदा क्या है जो इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए फरमाया जुंदुम मा हुनालिका माज़ूमुन फिल अहज़ाब। ये एक छोटा सा हकीर सा एक लश्कर है। जुंदुम, जो ये जो जुंदुम के ऊपर तनवीन है इसका ना, हकीर सा एक छोटा सा एक लश्कर है, जिसने हुनालिका यानी यहाँ पे ये शिकस्त खुर्दा है, और ग्रोह में से यहाँ पे ये शिकस्त खा जाएगा। यहाँ से मुराद ये कि या तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकस्त खा जाएगा, अल्लाह के रसूल के मुकाबले शिकस्त खा जाएगा। या हाँ वहाँ से ये भी ये मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ भी है कि उन यहीं मक्का मुअज़्ज़मा में ये शिकस्त खा जाएगा। यानी जहाँ ये लोग बातें बना रहे हैं उसी जगह एक दिन ये शिकस्त खाएगा। और ये वक्त आने वाला है जब ये मुंह लटकाए उसी शख्स के सामने खड़े होंगे, और उसी के माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे होंगे। आज ये उसको हकीर समझ रहे हैं, नबी मानने को तैयार नहीं। और एक वक्त आएगा कि ज़रूर शिकस्त खाएंगे और उसी के सामने खड़े होंगे, और फिर उनसे आप पूछा जाएगा कि आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। और ऐसा ही हुआ, जब मक्का फतह हुआ, तो सब अल्लाह आप रसूल के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। और उनका यही था कि वो यही चीज़ देख देख के हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। आज ये बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं कि इसके लिए क्यों, वही जो इसी को लिए क्यों चुना गया। मगर उस दिन सब उनके सामने सर झुकाए खड़े होंगे, और अपने फ्यूचर का देख रहे होंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हो। तो उससे उनको बताया जा रहा है कि उनसे पहले भी बहुत से जमातें आई, बहुत से लश्कर आए, उनके भी कोई, ये जमात, ये भी लश्कर भी उन्हीं लश्करों में से एक जमा है। एक उनमें लश्करों में से जमा होकर थोड़ा सा एक लश्कर बन गया है। तो जब भी कोई मैदान में आया तो शिकस्त ही खाई है उसने। जैसे सुमर सूरह कमर में आगे हम पढ़ेंगे उसे, वहाँ फरमाया गया है सयू जमू जम वयू युवल्लुन दुबुर, अन करीब जमात शिकस्त खाएगी, लोग पीठ फेर कर भागेंगे। जैसे अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में यही आयत पढ़ते हुए बाहर आए थे अपने खेमे से, और वो कौम वो जो शिकस्त खा भी गई, ये लश्कर था इन्हीं लोगों का, इन्हीं कुफार का मुशरिकीन का लश्कर जो खा गया, जो शिकस्त खा गया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये नहीं है, मगर इनसे पहले भी कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद, इनसे पहले भी जो कौमें थीं वो भी ऐसे ही, उनके साथ भी वही है। अल्लाह तबारक व तआला उनको डरा रहे हैं कि ये ना हो कि उनके साथ वही सुलूक किया जाए जो उनसे पहले गुजरी कौमों के साथ किया गया, जो उनसे ज़्यादा कुव्वत वाली और बातिल पर भी वो ज़्यादा कमर बस्ता थी। जैसे कौम नूह और आद है। कौम नूह तो आज जो है सैयदा हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। मेखों वाला फिरौन, यानी फिरौन को तो सब जानते हैं मिस्र का, तो मेखों वाला इसको असल में इसलिए किया कहा गया कि या तो इसके मायने, इसके कई मायने आ सकते हैं। सल्तनत ऐसी ज़बरदस्त थी कि इतनी मजबूत थी, गोया कि ज़मीन में मेखें ठुकी हुई हैं। या वो जिन लोगों को सज़ा दिया करता था उनके फिर वो हाथों में और सर में कीलें ठोंक दिया करता था। उस बिना पर भी उसको इस तरह अजाब दे, तो ये कहा जा सकता है। तो ये कि उसके लश्कर जो बहुत कसीर तादाद में थे, जहाँ भी वो पड़ाव डालते थे वहाँ पे खेमों के ऐसी मेखें ठुकी हुई नजर आती थी। या फिर यह भी मुमकिन है कि मेखों से मुराद ये अहराम मिस्र है, या जो उस जैसी जो उन्होंने से इमारतें बनाई जो ज़मीन के अंदर मेख की तरह ठुकी हुई हैं। तो इस तरह से उसको आ गया है कि वो फिरौन ज़ुलौताद उस मेखों वाला था। वह समूद और समूद जैसे साल इस्लाम की कौम जो थी वो कौम समूद, और कौम लूत और असहाब का असल में कहते हैं कि गहरे दरख्तों वाली और बागात के मालिक है कौम से मुराद सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। और हुआ क्या, ये भी सब ये ऐसे लश्कर थे, उलाई का अजाब, ये वही लश्कर थे जिन्होंने अपने रसूलों को छुटलाया। पर हम पढ़ा है कि सबके साथ क्या हुआ, हर किसी के साथ वही सलूक हुआ जो सबको सजा दे दी गई है, कि किसी को भी नहीं छोड़ा गया। ऐसे जिन जिन को भी अल्लाह तबारक को ने चाहा, वो सबको, जिसने भी रसूल की नाफरमानी की उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मिटा के रख दिया।
उसको तो कहीं कभी नहीं रखा, किसी को नहीं छोड़ा। जैसे हम पढ़ा है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने चीख से उसको मार दिया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने उसको डुबो के मार दिया, किसी को पत्थरों की बारिश करके उनको हलाक कर दिया। तो हर हर कौम के साथ जिसने रसूल उनके साथ ये सलूक हुआ। तो इनको भी फिर डरना चाहिए कि ये वो लोग थे जो हर किसी ने रसूल को झुटलाया। वो हक का, फिर उन पर मेरा अजाब भी जो वाक़ई हो गया, यानी फिर ऐसा उन पे अजाब आया कि वो कोई भी ना बचा। अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को बचा लेता है, और बाकी जो भी उनको इनकार करने वाले सबको तहस यानी तबाह और बर्बाद करके रख देते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी कर वमा यंजुरु हाउला इल्ला सय्यतुन वाहिदा। ये वो लोग हैं जो नहीं इंतजार कर रहे हैं, मगर एक सिर्फ चीख का इंतजार कर रहे हैं। यानी ये तो एक सिर्फ चीख का इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी वो चीख आए। यानी चीख से मुराद ये कि वो क़यामत के उलमा आए, यानी वो आए, और फिर उनके साथ भी वही हो कि जब क़यामत आएगी, असल में शायद वो दूसरे नफखा जो होगा उसके पैदा होने वाली आवाज़ है। क्योंकि फिर वो दो ये असल में कहते हैं, ये जो वक्फा जो बताया गया है, ये जब वहाँ बताया मिन फवाक, फवाक असल में कहते हैं कि दूध होते हुए जो थन को पकड़ने और छोड़ने का दरमियानी वक्फा है, इतना वक्फा भी उस, यानी थोड़ा सा वक्फा। मतलब ये कि साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले लोग एक सख्त चीज के इंतजार में हैं, जो शुरू होगी तो उसमें उस वक्त तक कोई वक्फा नहीं होगा जब तक लोग जिंदा होकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर नहीं हो जाएंगे। हाँ, सूरह यासीन में जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून। नहीं होगी वो मगर ये कि चीख तो अचानक वो सब हमारे पास हाजिर किए हुए होंगे। तो इसी तरह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे कि ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो सिर्फ उसके इंतजार कर रहे हैं। और फिर कह भी रहे हैं, इनके कितना अंदाज रहे हैं, कितना ये नालायक किस्म के लोग कह रहे हैं, वकालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्ताना क़ब्ल यौमिल हिसाब। कि हमारे साहब के जो दिन आए, जिन पर इनको तो यकीन था कि साहब का दिन भी कोई आना है, तो कह रहे हैं उससे पहले ही हमें साहब उसका अजाब दे दें। कित्ता कहते हैं असल में हिस्से को, कि काटना, क्योंकि हिस्सा भी काट के दिया, खत माने काटना। यानी हिस्सा काट के जो चीज दी जाती है उसको हिस्सा कहते हैं। उनका मतलब ये है कि जो हमारा अजाब है, यानी ये उसका क्योंकि वो अभी हमें, अगर आप आगे अजाब देना ही है तो उसका हिस्सा, यानी कितनी उनकी जरूरत इस हद तक पहुंच गई कि अल्लाह तबारक व तआला से फिर उसकी रबूबियत का वास्ता भी दे रहे हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब। यानी ऐ हमारे रब, हमें जो तू अभी हमारा हिस्सा दे दे, या जो अजाब दे वो हमें अभी से दे दे, यौम हिसाब से पहले अभी जल्दी दे दे। इस तरह जैसे अबू जहल ने भी जब वो जा रहा था बदर के मुकाम पे, या वैसे उसने पहले भी एक हरम के काबा का गला पकड़ के जब दुआ की थी, जब सूरह अनफाल में पढ़ा है, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिक। ए अल्लाह, अगर ये सिर्फ तेरी तरफ से हक़ है, वह अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो हम पे आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे, या पत्थर बरसा दे। भी अजाबिन अलीम, और या हम पर, या वातना अजाबी अजाबिन, और या हम पर दर्दनाक अजाब ले आ। यानी इतने कहना चाहिए कि इतने बेखौफ अल्लाह तबारक व तआला से कि ये खुद मांग रहे हैं कि अजाब हम पे, बजाय कि अगर ये कहें कि अगर ये हक है तो हम पे, हमें भी हिदायत दे दे, बल्कि कहते हैं अगर हक है तो हमें पत्थरों की बारिश बरसा दे, तो पत्थर बरसा दे। तो इनका हाल भी यही बताया जा रहा है कि ये भी यही मांग रहे हैं कि हमसे, हमें पहले ही वो हिसाब का दिन, क्योंकि मुझे यकीन है कि हिसाब का दिन तो आएगा। तो इनका अंदाज ये है कि वो कहे ये रहे कि हम पे फिर जो है वो हम पे भी अजाब नाजिल कर दे, अगर ऐसा है तो पहले पहले ही दे दे। इनको असल में उनको यकीन नहीं था कि अजाब भी आने वाला है। वरना तो कोई भी अल्लाह का अजाब मांगने को तैयार नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई खुद फरमाइश करके अजाब मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, और ऐसे ऐसे कामों से बचाए जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आए और हमें कोई सज़ा मिले। अल्लाह तबारक व सब पे रहम फरमाए, और उस दिन की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए जिस दिन सबको हिसाब, यौम हिसाब आएगा और हर कोई अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस दिन सुरखरू करे और हमें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।